you have just 40 minutes, sets are so lengthy and you won't be able to do justice और आप नहीं identify कर पाओगे. No concepts, no boundaries, no formulas as such. तो students को preparation कैसे start करनी चाहिए and where do they begin? They can imagine anything and can test you on any parameter. DILR is all about pattern recognition. Okay. अब आपके पास अगर 1000 patterns हैं, it won't fit in the examination. DILR में कोई भी student अपना progress कैसे track कर सकता है? तो इसको ट्रैक करने का एक ही तरीका है. कॉन्ट्स के फॉर्मूला याद हो जाते हैं, VARC के सोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन जब बात आती है DILR की, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है? द ट्रूथ इज DILR हैज़ नो फिक्स सिलेबस और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी. कैट का सबसे अनप्रिडिक्टेबल एंड कंफ्यूजिंग सेक्शन, जहाँ कॉन्सेप्ट से ज़्यादा सोचने का तरीका मैटर करता है. And today, to help us crack this DILR mystery, we have with us someone who has cracked it himself and even helped thousands of students to crack it. We have with us yet again our favorite M Square sir, or as you can say, our DILR expert, Mr. Mayur Mishra sir. Sir, तो सबसे पहले to start with the very obvious question, DILR ही ऐसा सेक्शन क्यों है जहाँ पे there is no formal syllabus? तो is it by design or is it by chaos according to you? Okay. इसका आंसर देने से पहले आई वुड लाइक टू नो द ऑडियंस एंड वुड लाइक टू आस्क यू कि ये है किसके लिए, मतलब व्हाट दे आर फेचिंग फ्रॉम द क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग. दे आर फेचिंग द फ्यूचर मैनेजर्स. That's true. सो उनकी जिंदगी क्योटिक होने वाली है. दे हैव टू टेक एक्शन व्हाइल दे आर इन एग्जीक्यूशन ऑफ समथिंग. सो सिमिलर इज द केस विद DILR. अगर डिफाइंड सिलेबस हो जाएगा, इफ दे गिव यू लिस्ट ऑफ 10 टॉपिक्स, आप प्रिपेयर करके चले जाओगे तो आपकी ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग कहाँ चेक हो रही है, That's very true. आपकी फ्यूचरिस्टिक सोच कहाँ चेक हो रही है, या फिर आपका जो वोलेटाइल नेचर होना चाहिए ड्यूरिंग द क्योज यू टेंड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वो कहाँ चेक हो रहा है. तो डिसीजन मेकर्स, द एग्जाम इज सीकिंग डिसीजन मेकर्स. Yes. They are seeking analytical brains, Problem solvers. problem solvers, and the people who have futuristic approaches and are prepared for the volatile world, मतलब जहाँ पे they can make and create an impact. Yes. So that is why it is by choice, not by chaos. कि syllabus हम सोच नहीं पा रहे क्या होगा. It is by choice to check whether you have that spontaneity or not. So I think very that is true the and reason. very well said. And coming to my next question with that thought, as you said कि हम problem solvers को ढूंढ रहे हैं, IMs are checking how well you can analytically think on the spot. So sir, with a section like this which has no concepts, no boundaries, no formulas as such, तो students को preparation कैसे start करनी चाहिए and where do they begin according to you? To begin with, see, this section has also evolved and is still evolving. Yeah. मतलब every year you will find a new set having a different algorithm altogether and you put it in the syllabus. मतलब DILR तो ऐसा होता है कि एग्जाम में आता है, उसके बाद वो सिलेबस में ऐड होता है टॉपिक. And this is how we have accumulated few topics inside our books कि ये topics हैं. But उनमें से भी few Plus, are हर साल अलग-अलग IIMs कंडक्ट करवा रहे, तो उससे वैरायटी बहुत you can expect of course yes, every year. obviously they have a pool of professors who are thrice the age of the applicants and have been into real world problem solving. So bhai, they can imagine anything and can test you on any parameter. Yeah. That is the thing why they are conducting such type of section or why they have this section in particular with the entrance examination. But what I was telling is this is still evolving, but अब evolution जो तो है वो slow down हो गया है. माइनर चेंजेस मिलते हैं. पर पहले अगर मैं 2000 से लेके 2017, 16, 18 तक देखूं तो बहुत चेंजेस हुए. 2001 आप देखेंगे तो बहुत नेसेंट सिंपल सा पेपर था, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे, उनको धीरे 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 एक्सपेरिमेंट करके यहाँ तक पहुंचे. तो इफ यू हैव टू बिगिन विद, तो बिगिन विद द सेम स्ट्रैटेजी. स्टार्ट विद द बेसिक्स. Yeah. Start with the for sure topics that are taught everywhere, Yes. है ना, and that are available everywhere, just to build the
concepts just to build the that strategy. habit of getting into Yes, the set habit of practice, yeah. getting into the problems and then coming out of the problem. Yes. तो उसके लिए start with the basics with the normal outdated topics. People call it outdated, but they are not outdated. They will help Yeah, you build similar the discussion I was having with Abhishek Tripathi sir also the other day. So he told me the same thing कि even if you're struggling with one set the whole day and you pick up the next day, so you have to come out of it क्योंकि आप खुद solution ढूंढते हो, so that is the magic हाँ, of DILR. DILR, So yes. doesn't matter कि आपका कितना time waste हो रहा Waste है हो वो रहा है. एक set के पीछे, but at least आप उसको solve कर रहे हो, अलग अलग तरीके बना रहे हो, you're finding out your way to come out of it. So I think that is something you're invested into completely. Yes, and this is how you will evolve, and this is how you will learn Yeah. कि क्या आता है, कैसे solve करना है और कितना solve करना है. Okay. So start with the basics. सर जैसा कि आपने कहा कि सॉल्विंग द सेट्स इज बेटर, लाइक यू शुड जस्ट गेट इनटू दैट प्रैक्टिस, तो क्या ज़्यादा सेट्स सॉल्व करना बेनिफिशियल है? लाइक आई हैव सीन someone who's solving 500 sets of DILR before their CAT exams, but वो without reflection होता है. But then there is another students जो 100 sets को pick कर रहा है और उन 100 sets को बहुत अच्छे से solve कर रहा है with proper reflection and analysis. So like उससे ज़्यादा sets हमें solve करते रहना चाहिए. Like what is the approach to it? Okay. So see, when you stir the water, the precipitation happens. Yeah. ठीक है. So if you keep on stirring it, so it will not precipitate. And I hope I answered your question. Yeah, कि correct. if you keep on adding new concepts daily, if you keep on solving new sets daily, like a target of 10 new sets, exclusively different variety, I will solve till the day CAT happens. So it is a stirring going on. Yeah. It will not precipitate. Give the time to the settlement of concepts. So if you are solving handful of sets, it should not be like just solving 25 sets and going for the examination, but you should decide that number as per your caliber, as per your availability of time, and as per the time available to analyze and solve them thrice. Okay. तो अगर आप एक चीज को 3 बार सॉल्व कर रहे हैं तो वो DILR is all about pattern recognition. Okay. अब आपके पास अगर 1000 patterns है, it won't fit in the examination. आपके पास sorted 150 पैटर्न्स है, 150 पैटर्न्स है, उनमें से कोई ना कोई मैच कर जाएगा. तो डाइवर्सिटी होना चाहिए, पर इतनी भी ज्यादा नहीं कि मैं कंफ्यूज ही हो जाऊं, कि वो नॉइस बन जाए. कॉन्सेप्ट की जगह इट क्रिएट्स नॉइस व्हाइल आई एम ट्राइंग टू पुट द अटेंशन, बट सॉल्व करते करते स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, मैं पता नहीं दूसरी लगाने लगा बीच में, क्योंकि इतना सारा डेटा है मेरे दिमाग में. सो the point you have said is very valid कि भाई कम सॉल्व करो, but शिद्दत से proper reflection और analysis से करो, मेहनत करो, उस पे 3-3 बार सॉल्व करो, तो definitely you'll get identify the patterns. Okay, all right. Sir, like you said कि भले कम सॉल्व करो but proper reflection and analysis से करो, शिद्दत से सॉल्व करो, but हर स्टूडेंट का ब्रेन आई गेस DILR फ्रेंडली नहीं होता जी. तो क्या DILR सिखाया जा सकता है या फिर वो खुद से डेवलप करना पड़ता है आपको, अकॉर्डिंग टू यू? लाइक व्हाट इज द मास्टर की? See, when a kid is born, so none of them are prepared for the life which is waiting for them. Yeah, that's true. है ना. हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, कैट के बाद भी क्या होगा, आगे चल के जिंदगी में क्या होगा, no one is prepared. Even we don't know what will happen the very next moment. तो DILR is all about this कि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, what next. If I'm doing so much of मेहनत and putting all my efforts, एग्जाम में गया तो शायद उसका 50% ही अप्लाई कर पाए, 50% वेस्ट चला गया. वैसी सी सिचुएशन है. तो अगर सिखाया जाने वाली बात है तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू द एक्सपर्ट्स जिन्होंने काफी सेट्स देखे हुए हैं, जिनकी स्ट्रैटेजीज क्लियर है और जो आपको ये बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो सिखाया जाने वाला पार्ट तो बस इतना सही है कि पेरेंट्स कैन फीड यू एंड पुट योर एजुकेशन फीस, करेक्ट, बट वहां पे जाके आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा विद डिफरेंट मॉक्स, विद डिफरेंट सेट्स एंड विद प्रैक्टिस. तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है. सिखाया भी जा सकता है और खुद भी इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा. ओके सर, अब बात है जब सिखाने की एंड डेवलपमेंट की, तो आई हैव ऑल्सो सीन कि स्टूडेंट्स का एक कंफर्ट जोन बन जाता है अराउंड DILR. कि अगर मुझे अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आई एम वेरी कंफर्टेबल, सो आई विल बिल्ड माय कंफर्ट जोन अराउंड दैट और मैं उसी के सेट्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करूँगा या करूँगी.
सो इस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, बिकॉज कैट इज अनप्रिडिक्टेबल एज वी बिल्कुल। नो, सो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अपने कंफर्ट जोन में जी रही हूँ या अपने बबल में जी रही हूँ दैट वुड एग्जिस्ट इन द हाँ, कैट वो एग्जाम। एग्जाम वाले दिन बस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो उस कंफर्ट जोन से कैसे निकल सकता है कोई भी ओके, स्टूडेंट? तो इसमें मतलब टू बी स्पेसिफिकली कि डीआईएलआर में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में है। मतलब मुझे आरसी हाँ। पसंद है तो मैं हाँ, वीए पे हाँ। उतना ध्यान नहीं दूंगा, मुझे अरिथमेटिक पसंद है तो मैं हायर मैथ्स पे हाँ, ध्यान नहीं दूंगा। ये होता है सबका अपना अपना कंफर्ट जोन, और हम वो सॉल्व करके एक सूडो प्लेजर लेते रहते हैं कि अरे मुझे तो बहुत आता है। तो ये डीआईएलआर में होना बहुत जायज़ है, और ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे ये होने के, क्योंकि एज सुन एज यू एंटर इनटू न्यू सेट यू विल बी लाइक अ न्यूबी। आपने कितनी भी मेहनत कर ली, आपने नया टॉपिक उठाया तो आपको लगेगा यार इसमें तो शुरू से मेहनत करनी है, और हर टॉपिक के साथ और ऐसा आई हुआ थिंक है। जब आप वो पहला मॉक देते हो आपको तभी डीआईएलआर और वो जो रियलिटी चेक होता है डीआईएलआर का वो तभी मिल जाता है। तभी मिल जाता है। हाँ। तो वहां पे आपको हर बार आप जैसे ही सेक्शन स्विच करेंगे यू विल बी लाइक पिछली लर्निंग्स कहाँ गई भाई, यहाँ पे तो कुछ और ही अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए अगर आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, देखो प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है, बट इतनी नहीं करनी है कि हम एक ही टॉपिक पकड़ के बैठ गए या दो। आप कीजिए, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया डेवलप कीजिए, उसके बाद यू हैव टू ऑब्वियसली स्विच टू द नेक्स्ट लेवल। आपको लेवल तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो लेवल बढ़ाने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द न्यू टॉपिक, सो दैट शुरू से वो कंस्ट्रेंट्स ना डेवलप हो ब्रेन में कि मुझसे तो नहीं होगा। सपोज बच्चे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू गेम्स, तो वो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, हाँ तो नहीं करना यार, क्या है ये, क्या करते रहते हैं, पूरा नंबर सिस्टम लगा देते हैं, तो वो नहीं करेंगे। तो भाई डोंट स्टार्ट विद सच सेट जहाँ पे आपके पूरी नंबर थ्योरी इन्वॉल्व है, पीएनसी इन्वॉल्व है, उसके बाद यू आर प्लेइंग एंड देन गेटिंग द आंसर। एंड मैंने ये भी देखा है कई बच्चे वो सेट का लेंथ देख के भी लेंथ देख के छोड़ देते हैं। वही मैं बोलूँ, इतना लेंथी सेट है कि 60-70 मिनट का सेट आपने पहला उठाया तो यू विल डेफिनेटली रिपेल इट, योर ब्रेन विल रिपेल इट कि कहाँ तू 10 मिनट में सेट सॉल्व कर लेता है, कहाँ यू आर इन्वेस्टिंग 60 मिनट्स। तो स्टार्ट विद द बेसिक सेट, सीडिंग के कॉन्सेप्ट उठाइए, राउंड रॉबिन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स उठाइए, पेयरिंग के कॉन्सेप्ट उठाइए। तो जैसे आप सेक्शन स्विच करते हैं वहां पे अगेन स्टार्ट विद 0 और आई शुड से -1 यार, but to start with your brain should feel comfortable, should start liking the section and then deal with the difficult questions. ऑलराइट, वेरी वेल सेड। और जो आपने टॉपिक्स भी बताए आई थिंक वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, सो दे मस्ट नोट इट डाउन एज वेल। Yes. सर हमने सीखने की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, आइडियली कितने सेट सॉल्व करने चाहिए उसकी बात बिल्कुल। करी, तरीके की भी बात कर ली। अब आ जाते हैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग पे। जी जी। तो डीआईएलआर में कोई भी स्टूडेंट अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक कर सकता है? डीएलआर में ये काम भी अगेन डिफिकल्ट है, जैसे सेक्शन डिफिकल्ट है उसमें। क्यूए में आपके पास पता होता है कि यार मेरा ये टॉपिक हो गया, मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, एलओडी 1 एलओडी 2 या एलओडी 3 टाइप सॉल्व कर लिया, पेपर में आए तो बन गए एंड हाँ हो गया। बट डीआईएलआर में आई थिंक वो डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट मुश्किल है, क्योंकि आप तैयारी करके गए, 4 टॉपिक आपने पिक किया, आपने बहुत मेहनत की, वो आपके एक्स फैक्टर टॉपिक्स है, आपने पेपर देखा, उनमें से एक भी पजल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। और आपकी जो परफॉर्मेंस है डीआईएलआर में वो फ्लक्चुएट करती है, ये बहुत नेचुरल है। एंड आई वांट टू कन्वे इट टू स्टूडेंट्स कि भाई बिल्कुल परेशान ना हो, डीआईएलआर में वो फ्लक्चुएट करेगी, मॉक टू मॉक वेराई करेगी, क्योंकि हर मॉक में सेम टॉपिक पूछा जाएगा नहीं है जरूरी, हर मॉक में सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा नहीं है जरूरी, हर मॉक में आप गिवन टाइम लिमिट में सब कुछ सोच पाओगे नहीं है जरूरी। तो कभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और कभी कम भी हो सकते हैं। तो डोंट बी लाइक कि इसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं, पहली चीज। तो इसको ट्रैक करने का एक ही तरीका है कि अगर मेरा मॉक अच्छा नहीं गया बट मॉक के बाद मैं अगर उन पजल्स को समझ पाया तो दैट इज माई प्रोग्रेस। मतलब मॉक के प्रेशर में मैं नहीं कर पाया था, मेरा लास्ट मॉक बहुत अच्छा था, डीआईएलआर सेक्शन की बात करूं, बट ये वाला उतना अच्छा नहीं गया। बट मॉक के बाद आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द पजल एंड आई गॉट द लूप होल्स कि कहां पे मैं मिस आउट कर रहा था। सो दिस इज हाउ यू विल ट्रैक द प्रोग्रेस, कि आपको मॉक बाय मॉक, आपको जब आप 10 मॉक दे लोगे, 12वें या 15वें मॉक पे आओगे तो आपको 15वें मॉक के सोल्यूशन एनालाइज करने में 2 घंटे की जगह 1 घंटा लग रहा है। दिस इज योर प्रोग्रेस। आप हैबिचुअल हो जाते हो एक पॉइंट के बाद। यस, तो आपका टाइम प्रोग्रेस विल बी योर ट्रैक रिकॉर्ड rather than the actual marks. They might fluctuate for few kids, for few it might not, but टाइम आपको कम लग रहा है अब चीजें समझने में। ऐसा नहीं हर बार आपको 2.5 घंटे लगते हैं सिर्फ एक सेक्शन एनालाइज करने।
कम टाइम लग रहा है मतलब यू आर ऑन ट्रैक। Okay. अब आपके दिमाग चलने लगा है उस दिशा में, और आप कैट वाले दिन जब तक पहुंचोगे तो भाई सारे मॉक के बाद वहां पे डेफिनेटली 2 से 3 सेट 2.5 सेट आप कर पाओगे। Okay, all right. I think very well explained with that. I think it's justified कि performance tracking उतना difficult भी नहीं है, वो mock by mock अगर आप चलो तो possible है। पॉसिबल है बिल्कुल। Sir, coming to my last and final question, क्या DILR का जो ये fear है वो real है या overhyped है according to you? मतलब आपकी जर्नी में आई एम श्योर ऐसे brilliant topper students भी रहे होंगे जो शायद अच्छे हैं अपने बाकी sections में, but DILR में उन्होंने भी struggle किया होगा and उस struggle को overcome भी किया होगा. जी। So like you might be having such examples. So is this fear real or is it just overhyped? हाँ थोड़ा तो है, मतलब स्टूडेंट्स विल अज्यूम कि इन्हें तो सब चीजें आसान लगती है, बट है जबरदस्ती ओवर हाइप किया हुआ है। यू हाउ मच यू हैव टू सॉल्व भाई, लेस देन 50% पेपर सॉल्व करना है आपको, तो उसको जबरदस्ती ये क्रिएट किया जाता है कि यू हैव जस्ट 40 मिनट्स, सेट्स आर सो लेंदी एंड यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस, और आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, और एक गलती से सब कुछ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने रिहर्सल कितनी स्ट्रॉन्ग की है। लोग मॉक पीआई के रिहर्सल की बात करते हैं, मैं बोलूँ डीआई के रिहर्सल। कैसे कि आपने वहां पे जो रफ पेज होता है दैट इज ऑफ A8 साइज, इट्स नॉट A4 पेपर। करेक्ट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता नहीं, छोटी सी चीज है पर ये वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमने A4 साइज पे क्रिएट किया, हमने टेबल बनाने की आदत है बड़ी बड़ी, और उसके नीचे सॉल्व भी कर लेते हैं और सब दिखता है, वहां पे यू हैव टू टर्न द पेजेस। और उस दिन मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि रफ शीट का साइज सेम नहीं था। मैं 2 पेज पलट लिया। ये मिसमैच आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता एट दिस पॉइंट। तो आई थिंक जो अभी मॉक्स लिख रहे हैं दे शुड डेफिनेटली नोट डाउन दिस थिंग कि हम अभी से वो A8 वाला नोटपैड वही नोटपैड पे आपको प्रैक्टिस करना है। करेक्ट। सो दिस इज द की कि आपको रिहर्सल बिल्कुल प्रॉपर वही वाली करनी कि इतना ही साइज होगा, यही मेरे पास पेपर का साइज है, इसी में मुझे सॉल्व करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। ब्रेन आपका ट्रेन हो जाएगा कि पेज पलट के भी आप देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, 3-4 पेजेस तक सोल्यूशन जा रहा है तो आप कर पा रहे हो, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है आपको। तो ये छोटी चीजों की वजह से ओवरहाइप्ड है कि वहां पे गलती हो जाती है और फिर बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट था। नहीं, तो आपको रिहर्सल बहुत स्ट्रांग रखनी है। अगर आपकी रिहर्सल बहुत स्ट्रांग है ना तो DILR में डेफिनेटली बहुत सारे लोग यही बोलते रह जाएंगे डिफिकल्ट है, आप आराम से 10-12 क्वेश्चन करके आओगे, पीपल विल बी लाइक या तो इसके पूरे गलत है या फिर ये झूठ बोल रहा है। आई थिंक जो आप बोल रहे हो वो अपकमिंग जो बच्चे लिखने वाले हैं कैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए डेफिनेटली ट्रू हो जाए कि वो 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर लेंगे। अगर आज के एपिसोड से एक चीज़ सीखनी है तो वो ये है कि DILR एक सब्जेक्ट नहीं, एक स्किल है, और स्किल बिल्ड होता है प्रैक्टिस और पेशेंस से, ना कि फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट से। थैंक यू मयूर सर फॉर शेयरिंग सच अ क्लियर पर्सपेक्टिव टू आवर कैट ऑडियंस। आई थिंक दिस एपिसोड विड बी रियली यूजफुल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद DILR एज ऑफ नाउ, या जिनको थोड़ा बहुत फियर है DILR का या सिलेबस का। सो दिस एपिसोड वुड बी रियली यूजफुल फॉर ऑल। सो एक बार दोबारा से सारे पॉइंटर्स देखना, मयूर सर ने जो भी चीज़ें कही हैं उसको रिकॉर्ड करना, एंड टिल देन stay tuned to Supergrads Cat YouTube channel and don't forget to share this episode with your Cat 2025 friends.